So we know that 21% is oxygen, 78% is nitrogen, and 1% is other gases. So when we breathe in the air, how does we separate nitrogen, other gases? Ishita, do you have some idea regarding this thing? Divija? Ishita, you can type it in the chat box there. Divija? Park? Yeah. Yes, Divija. Nobody knows it. Okay. Guys, we do not have any mechanism through which our body can separate the oxygen or nitrogen or other gases. Now, what happened in the atmosphere? Nitrogen is lighter air in volume, whereas oxygen is heavier air. So, in the lower part of the atmosphere, around the earth, this is an earth, around the earth, the most density of the air, the gas present in the air is O2. And as we go up, the density of oxygen start reducing and there is nitrogen. That is why many people feel problem in breathing in high altitudes because there is a less oxygen. Do we know that while the people go to the Mount Everest, they Yes, take the oxygen cylinders with them? It is not the yes, case sir. that there is no gas. There is gas, there is an air, but there is no oxygen. So in the lower part of the atmosphere where we are standing or living, there is most of the gas present, there is oxygen. So when we breathe in, the most of the gases we take in is the oxygen. But nowadays what is happening? We are creating a lot of pollution. There is a content of carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfuric gases, many gases are present there. These gases are also heavy gases and these are also being inhaled by us. So that is why a lot of people are having the problems, the cancers, and many diseases are being caused because of the impure heavier gases which are present in the atmosphere. If these gases would have been in the lighter weight, अगर इनका weight कम होता तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती ज़्यादा. क्यों? क्योंकि एयर में ऊपर होती है, हमारे सांस के साथ अंदर नहीं जाती. सो राइट नाउ क्या हो रहा है, हमारे सेल्स को पॉल्यूशन के कारण हमारे सेल्स के साथ ऑक्सीजन के साथ दूसरी गैसेज जा रही है, वो भी सेल के अंदर जा रही है और हमारी बॉडी के अंदर हमें पता ही नहीं काफ़ी ज़्यादा एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है बिकॉज ऑफ अदर गैसेस. चलो ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि हमारे ऑक्सीजन हमारे अंदर कैसे आती है. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन वी ब्रीथ इन द एयर, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द वी आर ब्रीथिंग इन द ऑक्सीजन. दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी देयर इन द क्लास? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके. सो इसके Yes. इसके बाद हम बात करेंगे सर, ब्रीथिंग तो हम नोज से करते हैं, इसके बारे में क्या फंडा है. तो according to the habitat of the organism and its structure, there are different kinds of mechanism to breathe in. जैसे कि fishes do not breathe with nose. They have a special organ in their body that is called Gills. 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 ऐसे ही आपके पास जो फ्रॉग्स हो गए या अर्थवॉर्म हो गए, इनके पास नोज भी नहीं है, गिल्स भी नहीं है. दे हैव द स्पेशल ऑर्गन, देयर स्किन, दे ब्रीथ थ्रू स्किन. कॉकरोचेस वगैरह जो होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, उनके आगे एंटीने लगे होते हैं, टेंटाकिल्स, जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं. सो अभी हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे. एंड ह्यूमंस एंड मेनी एंड लार्ज नंबर ऑफ एनिमल लाइक लायन, मंकी, टाइगर, buffalo, cow, goat, they all breathe through the nose and they have the organs for breathing is lungs. That is the most important organ. Okay guys, is it okay to everybody? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now different animals have different modes and different organs for respiration according to their body organization and habitat. Some of the common features, जो common features के बारे में हम discuss करें, what could be there? The process of respiration occurs when gases exchange by the physical process called diffusion. याद रखना, gases are always exchanged by the process of diffusion. हमारी बॉडी मैकेनिज्म करती है, बॉडी के अंदर गैस कम हो गई है, बाहर ज़्यादा होती है तो अंदर आ जाती है, अंदर ज़्यादा हो जाती है तो कुछ प्रोसेस ऐसा करते हैं कि प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसको गैसेस बाहर आ जाए. हम आगे देखेंगे. A gas diffuses across a moist membrane from the side where its partial pressure is higher to the side where the partial pressure is lower. वही बात बताई, गैस डिफ्यूज होती है मॉइस्ट मेम्ब्रेन से, कहाँ से?
उस बॉडी के पार्ट में से या बाहर के पार्ट से जहाँ पे ए प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, वहाँ से लोअर प्रेशर में। कई बार हम ज़्यादा वंस टाइम एक बार ही हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है, तो बॉडी से बाहर एयर जाती है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर कम हो जाता है, बाहर ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी बॉडी से बाहर से एयर अंदर जाती है। वो किस तरह से प्रेशर क्रिएट होगा, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट। बड़ा ही सिंपल मेथड है ये। For efficient gas exchange, the membrane separating the body fluid from the surrounding medium should be extensive. This means that surface area of the membrane should be large enough to get the oxygen. मतलब ये नहीं कि खाली एक छोटी सी पाइप आ रही है, उसके थ्रू गैस आई और वो पूरे ब्लड में। हमारे ब्लड को बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि पूरी बॉडी में चाहिए, हर सेकंड ऑक्सीजन चाहिए। सो इसके लिए सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। हमारे बॉडी के अंदर स्पेशल ऑर्गन है, लंग्स के अंदर ब्रोंचाइल्स है, ब्रोंचियोल्स उसका एक पार्ट है, जो छोटे छोटे होते हैं, जो बहुत सारे ऑक्सीजन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में जाएंगे। द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन शुड बी थिन एंड परमिएबल टू रेस्पिरेटरी गैसेज। और तीसरा प्रोसेस ये बता रहे हैं कि जहाँ से जैसे लंग्स के अंदर से ब्लड में जा रही, तो ये जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए लंग्स की, बड़ी पतली होनी चाहिए, जिससे गैसेज का ट्रांसफर क्या हो सके, ईजी हो सके। In large animal, diffusion alone is not able to supply oxygen to distant body cells. अब सपोज करो कि डिफ्यूजन हो रही है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी है, ये शेप है, ये मेरे पैर है, यहाँ से ऑक्सीजन गई। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, वो फैल रही है। क्या वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से पूरी पैरों तक जल्दी पहुँच जाएगी गैस? इट माइट टेक मंथ्स। बाय देन द सेल्स ऑफ द लेग्स कुड हैव बीन डैमेज। सो ऐसे एरिया में स्पेशल ऑर्गन्स काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एमीबिया। एमीबिया इज एन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इसकी मेम्ब्रेन बहुत पतली, गैसेस एक्सचेंज इसके डिफ्यूजन से हुई, ऑक्सीजन आई और इतना सा डॉट है, थोड़ी सी भी गैस आई तो बहुत जल्दी इसके पूरे सेल के अंदर फैल गई। बट इन लार्जर एनिमल्स दैट डिफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल। सो दे हैव द स्पेशल ऑर्गन्स वेयर they breathe in the oxygen with the mechanism of creating the pressure and reducing the pressure. That organism is known as lungs. Is it, this point is clear? Yes, why, sir. why, Yes, sir. why does the Yes, why sir. does the diffusion cannot take place in the larger animals? Diffusion cannot take place in the larger animal because anybody Ria? Sir, because diffusion is a slow process. Very nice. Let the Ria tell me. Ria? Sir, diffusion is a slow process and the surface area of a bigger organism will be more. So it Yeah. will take very much time for Yeah, it will take a long time for gases to diffuse to the whole part of the larger animals, and it is not possible, simple, right? So now let us think. Different animals have different organs for exchange of gases, like membranes. Membranes क्या होती है? अक्षत, सर हाँ जी, अक्षत गूगल कर ले भाई। ओके, आदित्य, मेम्ब्रेन्स क्या होती है? दीदी, outer lining of a cell that protects its surrounding, that protect the cell from its इधर surroundings. या उधर बाम सब पे लगाने वाला है ना। क्या कह रहे हैं आदित्य, समझ नहीं आया। So the outer lining of the cell that protect the cell Yes, from its membranes are the surroundings. boundaries of the cells, outer lining of the cell. आदित्य, अक्षर थोड़ा सा पढ़ लो। इशिता, आपको क्लियर हुआ? Where is Ishita? Ishita, you can type in the chat box. We are seeing the chats. ओके, फिर कई ऑर्गेनिजम्स में स्किन्स यूज होती हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में गिल्स, ट्रैक्यूल ट्यूब्स एंड लंग्स। राइट, रियांशी क्या लिखा है, मुझे दिख नहीं रहा। सर यस सर लिखा है। ठीक है, फट से पढ़ा रियांशी ने पहले। अगर उसने बोला होता नहीं समझ आया, फिर मेरी इंसल्ट हो जाती ना। ओके, now we are working on
द रेस्पिरेशन थ्रू मेम्ब्रेन। सी मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द मेम्ब्रेन, द आउटर लाइनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ मेम्ब्रेन। तो इसमें हम बात करेंगे एमीबिया जैसे ऑर्गेनिज्म। द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मैनी लोअर ऑर्गेनिज्म आर डिवॉइड ऑफ एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इनके पास कोई भी रेस्पिरेटरी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। दे हैव द सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर। वी नो दैट दे, you guys are there, you guys are listening me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Where is Divya? Yes, sir. I'm not audible. I'm not seeing her. Yeah. So, That's great, Divya. Divya, समझ आ रहा है बच्चे? तो लोअर एनिमल्स sir. में या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है। जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं, फिशेस का गिल्स होते हैं, इनके पास नहीं है। दीज ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेज थ्रू द medium through the general body surface by diffusion. Amibium, paramecium, hydra, sponge. They take oxygen dissolved in the surrounding water and expel carbon dioxide into it through the body surface. Simple. इनके अंदर गैसेज कम हुई, यहाँ पे लो प्रेशर हुआ और यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो गैसेज वाटर के अंदर डिजॉल्व है, अंदर आ गई। When the carbon dioxide extent is more, outside it is low, CO2 कहीं से भी अंदर बाहर कर सकते हैं ये। So this is a simple diffusion process. Is it clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Respiration through skin. इसमें ध्यान देना, स्किन्स में ये अर्थवॉर्म को अगर किसी ने देखा हो, मैं तो देख नहीं पाता, मुझे तो बड़े अजीब से लगते हैं। उनकी स्किन बड़ी मॉइस्ट सी होती है, गीली गीली सी होती है। किसी ने देखा है? Have you ever seen the Yes, earthworm? sir. yes, sir. So we were on the respiration through the skin. Now, as I told you, that respiration through the skin takes place in two types of organisms. The one is अक्षत, कौन सा था? Adit, anybody can tell me, please. Earthworm. 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 Frog. And another one is frog. इन आप होता क्या है, मैं पहले आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। इनकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है। दे हैव द मॉइस्ट स्किन। इनकी स्किन के नीचे साथ ही अंडर देयर स्किन ब्लड वेसल्स चल रही होती है। दे हैव द ब्लड वेसल अंडर देयर स्किन। मॉइस्ट एयर, द स्किन इज मॉइस्ट, द मॉइस्ट स्किन एब्जॉर्ब्स द एयर। वो स्किन से पास होके ब्लड वेसल जाती है, जो पूरी बॉडी के अंदर ब्रांचेस के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। दैट इज अ सिंपल प्रोसेस. There is nothing to go with the detail in it. In few organisms such as earthworms and leaves, the skin performs the functions of respiration. In these animals, the skin is always kept moist and is richly supplied with blood capillaries. See, this is the skin and blood capillaries इनमें continuously move हो रही हैं इनके पास. Blood has a hemoglobin dissolved in blood plasma that helps in transport the oxygen and carbon dioxide and leave the blood through the moist skin. सिंपल, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इसके ऊपर एनसीईआरटी में इससे भी कम लिखा है हमने, फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, हाउ डज द ट्रांसपोर्ट है, तो दे हैव द मॉइस्ट स्किन एब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन व्हिच पासेस फ्रॉम द स्किन टू द ब्लड कैपिलरीज व्हिच कंटेन्स द हीमोग्लोबिन and from there the exchange of gases take place. Is it okay to everybody? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब हम ये क्या हो गया, गिल्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये थोड़ा सा समझने वाला पार्ट होगा। फिशेस के अंदर गिल्स होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले बता रहा हूँ, दिस इज द माउथ ऑफ द फिश। यहाँ से सी एनीबडी इज हैविंग द what you called it aquarium at their home, or they have seen the aquarium? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक पंप लगा होता है जो Yes, sir. जो कंटिन्यूसली Yes, उसके sir. अंदर से बबल्स निकल रहे होते हैं। डिड एनीबडी नोटिस दैट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके, तो वो बबल्स क्या करते हैं, वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व करते हैं, राइट? तो ऐसा ही either it is a fresh water or saline water, there is oxygen or air dissolved in the water. What the fishes do that they take in the water from their mouth. उन्होंने माउथ से ऑक्सीजन ली, water. They take the water and this water has the oxygen in it, dissolved
H2O के अंदर, वाटर के अंदर ये वाली ऑक्सीजन की हम बात नहीं कर रहे हैं. जो वाटर लेते हैं दैट कंटेन्स दिस एंड प्लस गैसेस. ऑक्सीजन की कंटेंट ज़्यादा होता है और दूसरी गैसेस भी होती हैं. नाउ this water goes into the gills. Now gills has a very small gills filament, large number of gills filament. ये चाय की छन्नी जैसा काम करता है. It filtered the water and allow only the air particles to pass through it, whereas the water is moved out from the gills to the mouth and comes out. Do you understand this process? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's see. Gills are the respiratory organs of aquatic animal like fish, prawns, etc., which, being present in water, gills are constantly bathed in water current. They are richly supplied with blood capillaries in which blood flows in the direction opposite to that of water current. यानी कि इसके अंदर जो ब्लड की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है वाटर करंट से, क्योंकि वाटर अगर इधर मूव कर रहा है तो ब्लड की सप्लाई इधर की तरफ जा रही होगी, जिससे पानी आए ऑक्सीजन लेके इधर मूव कर जाए. एज ए रिजल्ट देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड द फ्लोइंग वाटर. Fishes take in water through its mouth and forces it to pass the gills. Is it clear? Gills तक कैसे पानी पहुंचा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Gills have a large number of gills filament that greatly increase the surface area of the gas exchange. Got it? Surface area बहुत ज़्यादा बढ़ गया. इतना सा पानी यहाँ से गया था, लेकिन ये पानी पूरे इस एरिया में फैल गया. तो पूरे एरिया से ये पार्ट्स में, सो इस पूरे एरिया से क्या होगा? और गैसेस का सर्फेस होगा. यस, द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, वेयरएज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड डिफ्यूजेस इनटू द वाटर. यानी कि ऑक्सीजन जो है पानी के अंदर जो डिसॉल्व थी वो ब्लड के अंदर आ गई, जो इनके पास थी, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर आ गई. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Therefore, fish opens its mouth for taking in water and open the operculum of the exit of the water. Clear. Now we are working on the respiratory system in human beings. Should we start it? Yes, sir. Ishita, Yes, आपको आवाज Yes, आ रही sir. है? Yes, sir. Adit, where are you? Riyanshi, Riyad, Yes, sir. Yes, sir. Divija, Akshat, Yes, sir. Adit. Sir, on है मेरा काम. क्या कर रहा है? खाना खा रहा हूँ. Sir, कैमरा ऑन है. मैं नहीं देख पा रहा हूँ अभी. मैं एक ही बच्चे को देख पा रहा हूँ. इस टाइम दिविजा दिख रही थी, कभी रियांशी दिखती है. बस ये दो ही लोग आ रहे हैं स्क्रीन में और कोई नहीं आ रहा मेरी. द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट्स ऑफ, क्या क्या होता है उसका? नोज होता होगा, अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, राइट. नेसल कैविटीज, वो जो नाक से आगे गैसेस को ले जाते हैं. इंटरनल एयर्स, सबके बारे में बात करेंगे. फाइनेक्स, लाइनेक्स, ट्राइकिया, ब्रोंचियोल्स, लंग्स ऑफ एयर्स. क्या है ये सब? अभी हम इन सबको थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे. अब जो मैं बताऊंगा थोड़ा सा पॉइंट, उसका प्लीज अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे. हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स करेंगे, उसको अपनी लाइन में लिखेंगे, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा. ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ इन द एयर थ्रू देयर नोस्ट्रिल, समटाइम थ्रू द माउथ. यानी दो ऑर्गन्स है एयर इनटेक करने के. द वन इज नोस्ट्रिल एंड अनदर इज माउथ. Mouth. Mouth. नोस्ट्रिल इंपॉर्टेंट. हमारे पेरेंट्स हमें जब अभी भी कहते हैं छोटे थे, बेटा मुंह बंद करके सांस लिया करो. डू वी नो दैट? कहते हैं कभी? Yes, sir. आप लोगों Yes, को sir. आप लोगों को समझ नहीं आती तो आपको डराते हैं दांत बाहर आ जाएंगे, तब आप मुंह बंद कर लेते हो. वैसे आप लोगों को बात समझ नहीं आती. होता क्यों है? नोज के अंदर काफ़ी सारे हेयर्स होते हैं और नोज मॉइस्ट होती है. जब एयर आती है तो वो मॉइस्चर और हेयर्स डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, जिसको वो म्यूकस बना देते हैं. और नोज के पास होने के बाद सिर्फ फ्रेश एयर या क्लीन एयर ही जा पाती है. डस्ट पार्टिकल्स नोज में ट्रैप हो जाते हैं. डू यू गेट इट? Yes, sir. Yes, From, sir. अच्छा, पहले क्या हो रहा है नोस्ट्रिल से, तो हम पहले देखेंगे प्रोसेस क्या है. एयर ब्रीथ इन थ्रू द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से इट गोज टू द नेसल कैविटीज. अभी हम फोटोग्राफ्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, सारा क्लियर होगा. इट ड्रॉज इनटू द नेसल कैविटीज.
which are separated from the mouth cavity by a partition called palate. अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ. This enable human beings to breathe continuously even while eating. देखिए होता क्या है, ये नोज है आपका, यहां से जा रही है एयर, ये एयर यहां पे एक पैलेट होती है. तो वो जब हम खाना खाते हैं, जब वो अंदर करते हैं, तो ये पैलेट इसको बंद कर देती है, जिससे कि वो विंड पाइप से एयर जो है यहाँ ना जाए, या कई बार हमारे नाक में पानी चला जाता है तो ये विंड पाइप अपने को बंद कर लेती है, जिससे कि वो पानी लंग्स में ना चला जाए. सो ये पार्टीशन पैलेट जो क्या करती है, सेपरेट करती है माउथ कैविटी को नेसल कैविटी से, कि व्हेन वी आर ईटिंग द फूड we have the two different pipes. When we are eating the food, food goes in here and air goes here, so there is no link. अगर सपोज करो एक ही पाइप होती तो हम खाना खाते तो सांस नहीं ले पाते. This enables human beings to breathe continuously even while eating. Inside the nasal passage, the air gets warm, moistened and filtered by a hair and a cilia lining the passage. जो मैंने आपको बताया था, एयर क्या हो रही है, वार्म्ड हो रही है, मॉइस्चर हो रही है और फिल्टर हो रही है. द ग्लैंड प्रेजेंट इन द नेसल कैविटी सीक्रेट म्यूकस दैट इंट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स. हम ये प्रोसेस देख रहे हैं किस तरीके से चल रहा है. एज अ रिजल्ट एयर एंटरिंग द लंग्स बिकम फ्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. इज इट क्लियर कि किस तरीके से नेसल कैविटी से लंग्स तक एयर जाने की कोशिश करेगी और वो डस्ट से कैसे फ्री हुई है? Yes, sir. Yes, sir. अब उसके बाद आगे देखते हैं. द नेसल कैविटीज एंड्स एट नोस्ट्रिल थ्रू विच एयर एंटर्स द फाइनेक्स. फाइनेक्स एयर पाइप है जहाँ पे वो नोस्ट्रिल, जहाँ पे नोस्ट्रिल खत्म होता है. इसको ना अभी हम एक फोटोग्राफ में पूरा डिटेल में देखेंगे. थ्रू विच द एयर एंटर्स, व्हेन वी ब्रीथ थ्रू द माउथ, द अनक्लीन एयर डायरेक्टली एंटर्स द फाइनेक्स. फ्रॉम फाइनेक्स एयर एंटर्स टू द विंड पाइप एंड ट्राइकिया. सो अब देखिए इशू क्या, अगर हम माउथ से ब्रीथ करते हैं तो क्या होगा, अनक्लीन एयर हमारे माउथ के अंदर पहुंचेगी. अब ये पॉइंट ध्यान देना, ट्राइकिया. ट्राइकिया इज सपोर्टेड बाय अ सी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज बिकॉज ऑफ विच इट डज नॉट कोलैप्स इवन देयर इज नॉट मच एयर. दिस इज अ ट्राइकिया विंड पाइप. विंड पाइप के अंदर सी शेप बोन्स है. ये बोन्स क्या करती हैं, जब हम एयर ब्रीथ आउट करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, तो विंड पाइप के अंदर एयर कम हो जाती है, क्योंकि या तो एयर बाहर चली गई या इधर आ गई. सो व्हेन देयर इज लेस एयर, विंड पाइप कोलैप्स हो जानी चाहिए, जैसे बैलून से हम एयर निकालते हैं, बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग ट्राइकिया कार्टिलेज, राइट. द ट्राइकिया, ये ट्राइकिया इज कॉल्ड अ विंड पाइप. दिस विंड पाइप पासेस थ्रू द नेक टू एंटर द ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंचाइज. और आगे जाके दो ब्रांचेस में ब्रेक चेंज हो रही है, जिसको हम ब्रोंचाइज कहते हैं. ईच ब्रांचेस एंटर द लंग्स ऑफ इट्स ओन साइड. एक लेफ्ट साइड में जा रही है लंग्स के अंदर और ये राइट साइड जा रही है. अब ये वाला पार्ट जो है, दिस इज द लंग्स. इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. और आगे ये ब्रांचेस जाके ब्रेक हो जाती है छोटी छोटी ब्रांचेस में, जिसको हम कहते हैं ब्रोंचियोल्स. ओके, अब हम थोड़ा सा इस बारे में ध्यान देखना. द लंग्स आर सस्पेंडेड इन एन एयर टाइट कंपार्टमेंट कॉल्ड थ्योरेटिक कैविटी. दीज लंग्स, ये देखिए ये भी लंग्स है, लेकिन इसके बाद हमने ये दिखाया है रिब्स केजेस है ये हमारे. तो लंग्स आर सस्पेंडेड बाय एयर टाइट कंपार्टमेंट कॉल्ड थ्योरेटिक कैविटी. एयर टाइट कंपार्टमेंट है, यानी कि सिर्फ इसके अंदर जो एयर है यहीं से आ सकती है और कहीं से नहीं. विच आर सेपरेटेड फ्रॉम एन एब्डोमिनल कैविटी बाय मस्कुलर पार्टीशन नोन एज डायफ्राम. दिस इज अ डायफ्राम. ये हवा में लटके है क्या? नहीं, इसको सपोर्ट के लिए डायफ्राम गिवन है, जो डायफ्राम इसको सपोर्ट कर रहा है. ये डायफ्राम इसको गैसेस को एक्सचेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, हम आगे देखेंगे. सो नीचे से लंग्स को सपोर्ट कौन कर रहा है? डायफ्राम. फ्रंट साइड से कोई डैमेज ना हो, लंग्स को सपोर्ट किया है आपके रिब्स ने. द वॉल्स ऑफ द चेस्ट कैविटी आर सपोर्टेड बाय रिब केजेस
with sheets of muscles between the ribs. Is it clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. And lungs are covered by two thin membranes called pleuria that line the chest wall internally. यानी lungs के अंदर एक कोई पतली सी membranes होती है जिसको क्या कहते हैं? Pleura, right? Pleura. And diaphragm forms the floor of the chest cavity. ये हमने किया. अब within the lungs, the bronchi divides into smaller branches called bronchioles. Lungs के अंदर छोटे-छोटे branches में convert हो रही है branches, which are called bronchioles. Each bronchiole terminates into a cluster of balloons-like structure called alveoli. Aloe नहीं है ये, alveoli. क्या मतलब ये जो छोटे-छोटे ना इसके यहाँ पे एक balls like a sacs हैं. इनको कहते हैं alveoli. The walls of alveoli are extremely thin and contain an extensive network of blood vessels. और इन alveolis में क्या blood capillaries बहुत सारी होती है जहाँ से exchange of gases होते हैं. And alveolis का use क्या है? They provide a large, what they do? They provide a large surface area for the exchange of gases. अगर एक bronchiole जाती तो बस यहीं से गैस एक्सचेंज होती है, लेकिन एक ब्रोंची होल्स आगे बड़े सारे सैक्स में कन्वर्ट है तो बहुत सारे एरिया से क्या हो रहा है? गैसेस एक्सचेंज हो रही है. थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है ये पार्ट? मुझे तो लग रहा है. एनीवन देयर? नाउ लिसन टू थिंक दिस पार्ट. ब्रीथिंग इज अ साइक्लिक प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग्स. ईच ब्रीथिंग साइकिल कंप्लीट्स इन टू फेजेस. दो फेजेस होते हैं. एक होता है सांस अंदर लेना और दूसरा प्रोसेस हुआ एक्सेल, सांस बाहर लेना. यानी टेकिंग इन द एयर और ऑक्सीजन इज नोन एज इनहेलेशन. इंस्पिरेशन, inhalation of air from the outside to the lungs. This is called inhalation or inspiration. Expiration, expiration मतलब exit of the air, the exhalation of air from the lungs to the outside. अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे. मैं ना इससे पहले आपको एक बार प्रोसेस हम वीडियो देखते हैं. अच्छा, ब्रीथिंग मैकेनिकल प्रोसेस है that occurs by the expansion and contraction of the theoric activity. मतलब लंग्स एक्सपैंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. कभी देखना जब आप सांस लेते हो तो आपकी चेस्ट बाहर आ जाती है, सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट और पेट अंदर हो जाता है, क्योंकि सांस लेने के लिए और छोड़ने के लिए हमारे रिब केजेस और डायफ्राम एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. वो भी हम बात करेंगे किस तरह से होगा. थोड़ा सा मैं आपको ये बताने के लिए इसमें लिखा है. पहले हम एक वीडियो देखते हैं कि पूरा प्रोसेस कैसे होगा, फिर हम उसको राइट डाउन करेंगे. इज इट ओके गाइस? Yes, sir. Yes, sir. अरे भाई चल जा. वॉइस आ रही है? We cannot breathe underwater because our lungs Yes, sir. वॉइस आ रही है गाइस? Yes, sir. can take in free oxygen from air but not the dissolved oxygen in water. And why is that? We take in air or inhale through nose or mouth. Breathing through nose is better as mucus and hairs in the nasal cavity can filter out lots of dirt from the air. Then the air enters trachea or windpipe through pharynx or throat. This pharynx has one more opening which leads to food pipe. Whenever air enters it, stomach send it back as burp. Now, air passes through the windpipe, then the two bronchi, which forms many narrower branches called bronchioles. Small air sacs or alveoli receive the air and oxygen from air diffuses into blood through thin wall of. आई थिंक यहाँ तक अभी तक जो मैंने कराया है, इन्होंने 1 मिनट के वीडियो में सारा आपको समझा दिया. Yes, sir. ये तो चीटिंग है. Blood capillaries during the diffusion process. Blood cannot exchange gases
absorbed in water in this arrangement. Hence, we can't breathe in water. How do we breathe the air out? The diaphragm moves downward, creating space for. देखिए, अब एक प्रोसेस ध्यान देना, प्लीज एक लॉजिक सोचना। आप लोग सांस कैसे लेते हैं, छोड़ते हैं? होता क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये लंग्स है, यू आर सीइंग दिस लंग्स। ये नीचे व्हाइट कलर का पार्ट जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ डायफ्राम। मेरा माउस चलते हुए नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, इस पे नहीं दिख रहा ना? यस सर, नहीं दिख रहा। अरे वो रेड पे वो व्हाइट पे यूट्यूब के उस पे नहीं दिखेगा आपको, कोई बात नहीं। ये डायफ्राम है, व्हाइट कलर का पार्ट। मैं इसके आगे यहाँ पे एरो लगा रहा हूँ, ये व्हाइट कलर का पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये डायफ्राम क्या करता है, ऊपर हो जाता है, जिससे क्या हुआ, ये लंग्स प्रेस होते हैं, और साथ में इसके ऊपर जो रिब केजेस थे वो भी अंदर की तरफ प्रेस हो जाते हैं। बाहर से लंग्स ने अंदर की तरफ से प्रेस कर दिया, नीचे से डायफ्राम ऊपर हो गया। तो इस तरह से बना कि जैसे एक बैलून आपके हाथ में है, आपके हाथों से उसको प्रेस हुआ और नीचे से भी आपने उसको प्रेस किया, तो सारी हवा बाहर निकल जाएगी ना प्रेशर क्रिएट होने पे। Yes, sir. So Yes, same sir. way what happened, the air moves out, but when the lungs need the oxygen or air, diaphragm goes down, वो नीचे हो गया, तो उसने इसका एरिया बढ़ा दिया और रिब केजेस एक्सपैंड्स, क्योंकि रिब केजेस के पीछे मसल्स से जो हमने पढ़ा था, रिब केजेस एक्सपैंड हुए, सो ये खुल गए, तो यहाँ पे लो प्रेशर है, ये बाहर हाई प्रेशर है, सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर एंटर हुई। यू गॉट द लिटिल बिट प्रोसेस कि क्या हुआ होगा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स अगेन सी दिस। creating space for the lungs to move downward. How do we breathe the air out? The diaphragm moves downward, creating space for the lungs to expand, decreasing the air pressure in lungs. When diaphragm moves up, putting pressure on the lungs, then the air from the lungs moves out of the body or gets exhaled. Taking the reversed path, that is bronchiole, bronchi, windpipe, pharynx, then nose or mouth. We do this process, that is inhaling and exhaling 12 to 20 times per minute. ये एक्सपैंड हो जाती है। I hope this part is clear to everybody. Yes, sir. Yes. यस सर। Okay. यस अब हम इनहेलेशन को थोड़ा सा देखते हैं कि हम वर्डिंग्स में कैसे लिखेंगे। वैसे आपको इस वीडियो से समझ आ गया, मैं फिर बताता हूँ आपको। सी यहाँ पे अगर हम देखें तो डायफ्राम ऊपर की साइड है और लंग्स बाहर आ गए। एक बार सांस अंदर लो, आप देखेंगे आपकी चेस्ट बाहर आ रही है और पेट से अंदर से नीचे से ऊपर कुछ फील हो रहा है। ये डायफ्राम ऊपर हो जाता है, लंग्स बाहर, तो अंदर लंग्स के पास जगह ज़्यादा हो गई। सो इट हैज़ क्रिएटेड द लो प्रेशर इनसाइड द लंग्स and since there is a high pressure outside the lungs, what happened, air automatically moves from the high pressure to low pressure through the nasal cavity and the trachea and bronchs and then to bronchioles. You got it, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उस प्रोसेस क्या कहते हैं जब डायफ्राम ऊपर होता है? We can say that when diaphragm contracts, डायफ्राम क्या हुआ,
कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो क्या हुआ है, नीचे आएगा, तो एयर क्या होगा, इनहेलेशन होगी. When the thoracic cavity expand, air is sucked into the lungs through inspiration. किस तरह से thoracic cavity occur होती है? The diaphragm and intercostal muscles attached to it contract. क्या हुआ, diaphragm contract हुआ. Contract होने पे diaphragm कैसा हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा. The ribs moves upward and outwards. Rib क्या हुए, ऊपर हुए, outward. You can feel it when you take in the breath. You can feel that ribs are moving upward and outward. And the diaphragm moves downwards. और diaphragm कहाँ move हुआ, downwards, to become more flattened. This increase the volume of thoracic cavity and the lungs. और lungs का आपका क्या हुआ, volume बढ़ गया. As a result, there is a decrease in air pressure inside the lungs and in the whole respiratory tract. The air thus rushes in from the outside to equalize the air pressure in the lungs. The alveolar sacs get filled with the oxygen-rich air. As the alveoli are richly supplied with blood capillaries, the exchange of gases take place between the air and the blood. Is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इसी का उल्टा क्या होगा, एक्सेलेशन. The diaphragm and intermuscles attached to it expands. The ribs moves downwards and inwards, and the diaphragm moves upwards and to become more bent. Flattened की जगह bend हो गया. This decreases the volume of the thoracic cavity and the lungs. As a result, there is a high pressure increase in the pressure inside the lungs and in the whole rest. Same चीज आ रही है. Thus the air rushes out from the lungs to the outside air. Is it positive? Guys, No, sir. एक और वीडियो देखते हैं. In this module, you will learn about respiration in human beings. How do human beings respire? In human beings, air is drawn into the body through the nostrils. Nostrils are lined with fine hairs and mucus that filter the air as it passes through. Next, the air travels through the throat and then moves through a pipe called trachea. Trachea contains cartilaginous rings that ensure smooth flow of air into the lungs. From here, the air passes through the bronchi before entering the lungs. The bronchi are like a network of tubes that keep branching into smaller tubes called bronchioles. At the end of each bronchiole, you will find balloon-like structures called alveoli. The alveoli provide a surface for the exchange of oxygen and carbon dioxide. The walls of the alveoli contain a massive network of blood vessels. When we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm. As a result, the chest cavity becomes larger. Air gets sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. The oxygen in the alveolar air is taken in by the red blood cells in the alveolar blood vessels. The oxygen in the red blood cells is then transported to all the cells in the body. The cells in turn release carbon dioxide, which diffuses into the blood and is then released into the alveoli. In large animals like elephant, it is difficult for oxygen to reach all parts of the body through diffusion. Hemoglobin, a respiratory pigment present in red blood cells, has high affinity for oxygen. This pigment
binds with oxygen from the air in the lungs and forms oxyhemoglobin. Later, through oxyhemoglobin, oxygen is distributed to all the tissues in the body. The tissues in turn release carbon dioxide, which diffuses into the nearby blood capillaries. Carbon dioxide is more soluble in water than in oxygen. Therefore, carbon dioxide is generally transported through blood as bicarbonate, which is its dissolved form. In this module, you learned that air enters a human body through the nostril. It moves through the throat and then the trachea. From the trachea, it enters the bronchi and then goes into the lungs. The bronchi form a network of tubes known as bronchioles. Each bronchiole has alveoli at the end. Hemoglobin absorbs oxygen from the air in the lungs and carries it to tissues all over the body. In this module, you will ओके गाइस, यहाँ तक समझ आया इनहेलेशन और एक्सहेलेशन तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी हमारा इसके साथ एक थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, दैट इज हाउ डज वी कंट्रोल अवर ब्रीथिंग। ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वगैरह जो भी इसमें बात थी वो भी हमने नहीं की है, वो करना है। किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, कार्बोनेट बनता है, ठीक है। और फिर हमने कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस पढ़नी है, जैसे कि कई लोगों को प्रॉब्लम्स होती है अस्थमा वगैरह, वो क्यों होती है, ठीक है, कफिंग क्यों होती है, थोड़ा बहुत हम इस बारे में पढ़ेंगे हल्का हल्का, कुछ टॉपिक्स हल्के से रह गए। इसके साथ ही नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर एक और गूगल क्लासरूम में टेस्ट होगा, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द टॉपिक इज ऑफ 15-20 मिनट्स। देन होल रेस्पिरेशन प्रोसेस का स्टार्टिंग एटीपी से लेकर अब तक का एक छोटा सा टेस्ट होगा क्लासरूम में। इमीडिएटली आई विल पुट अप द क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर इट। विल इट बी ओके विद एवरीवन? इशिता, यू हैव एंजॉयड द क्लासरूम? Ishita, have you joined the classroom? Yes, okay. ठीक है, so I think up to here we have done it. मैं इसका PPT नहीं दे रहा अभी, reason behind it, I want read from your book and make up the notes। किसी भी 3 बच्चों को नेक्स्ट क्लास में किसी भी 3 बच्चों को बोलूँगा